Hello everyone. Good afternoon. Welcome me back in topic statistics. Yesterday there was a gap, and I know that in the gap you might have forgotten the basic concept of this one. We have started understanding about CF, that is cumulative frequency. So if you before watching this video, if you've forgotten what is cumulative frequency, if you don't remember what is it, or if you haven't yet solved the questions of cumulative frequency, that means yesterday's video, please I recommend that you should complete that first and then continue watching this video. Okay, so I expect you all to first of all watch that video and complete the work of that video, then only come to this. So what we understand is nothing but less than cumulative frequency, and there are two types of frequency. One is less than cumulative frequency, second is more than cumulative frequency. Less than the upper limit, more than the lower limit is the concept that one should understand. In the less than, the first remains same, and in the more than, the last remains same. So this is another thing one should know. If you remember these things, if you remember the difference, you will 100%, you will surely able to solve so many questions of this category. Okay, so less than the upper limit, more than the lower limit, less than my first remain same, and more than the last remain same. That's it. Now let's continue the next one, that is finding median of the grouped data. Median. Before we start the question, or before I explain you, I will tell you the formula for median. It is L plus n by 2 minus CF upon F into H. I know that when you look at the formula, it is quite एकदम ऐसे weird सा formula लग रहा है. But let me tell you, we are going to discuss all that, and after some time, you are going to consider all these things, and the formula also very simple. Okay, so don't worry. Let's understand. कोई भी स्टार्ट का क्वेश्चन करना है तो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन मीडियन ऑल्सो द कॉलम राइटिंग और द कॉलम रिमेंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉलम में क्या क्या होता है? क्लास होता है, देन द फ्रीक्वेंसी होती है, एंड देन CF है in median. Okay, it is easier than mean, as I have already said, in terms of calculation as well as in terms of remembering. Which type of CF we need? Because there are two types of CF. तो यहाँ पे less than, तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, always remember in median we are using only and only less than type CF table. Less than type CF table, that's it. We are not going to use more than anywhere. ठीक है? तो you will ask you why we have learned that. तो that we'll understand in a short time, don't worry. बट अभी तो समझ में आ गया आपको कि लेस देन ही यूज़ करना है, लेस देन CF ही यूज़ करना है. चलो क्लास देखते हैं. 5 to 10, 10 to 15 है क्या? ओके, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 and 40 to 45. F क्या क्या है? 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2. अभी CF चाहिए. विच टाइप ऑफ CF चाहिए? लेस देन टाइप CF. मुझे बस CF चाहिए, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था ना, कि लेस देन 10, लेस देन 15, वो सब कुछ नहीं लिखना है. मुझे बस जस्ट CF का कॉलम लिखना है यहाँ पे. तो वो कैसे लिखेंगे? जस्ट देखो, फर्स्ट रिमेन सेम, और उसके बाद जिगजैग एडिशन, जिगजैग एडिशन, जिगजैग एडिशन. समझ में आ गया? तो 5 + 6 11, 11 + 15 26, 26 + 10 36, 36 + 5 41, 41 + 4 45, 45 + 2 47, and 47 + 2 49. पर्पजली ये नंबर ऐसे 49 जैसे आ रहे हैं. नॉर्मली आपको एक 50 वगैरह ऐसे होल नंबर आता है, सो डोंट वरी. बट राइट नाउ ये तो क्लियर हो गया. आपको समझ में आ रहा है क्या कि ये जो समेशन ऑफ FI होगा, समेशन ऑफ FI वो भी यही होगा. इन कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन वी कॉल दैट एज n. तो यहाँ पे ये जो 49 आ गया है वो है n. n मतलब क्या होता है? टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, मतलब इस इन सब का सम, और वो भी 49 ही आता है. रिमेंबर दैट. चेक कर लो इफ यू वांट टू ऐड ऑल दिस FI. दैट मीन्स समेशन FI. n इज नथिंग बट समेशन FI. याद रखो इसको. हम लोग 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट वाला स्टेप, फाइंडिंग n by 2. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 स्टेप के लिए मार्क्स होते हैं, हर एक स्टेप के लिए अपने अपने मार्क्स होते हैं. तो इन 3 स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करना है. n by 2 मतलब 49 डिवाइड बाय 2.
2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0.5, 24.5. सेकेंड है टू फाइंड मीडियन क्लास. मीडियन क्लास ये क्या होता है? द क्लास इन विच द मीडियन इज फाउंड. तो उस क्लास को ढूंढना है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया को रिड्यूस कर रहे हैं. तो ये कैसे ढूंढते हैं? तो n/2 इज गोइंग टू गिव अस अ मीडियन क्लास. कैसे देगा? n/2 से पहली वाली बड़ी वैल्यू इसमें कहां पे है वो आपको मार्क करनी है. ठीक है, आई रिपीट अगेन. n/2 से द फर्स्ट लार्जर वैल्यू देन n/2 यू विल सर्च इन CF. तो आई कैन इजीली सर्च द वैल्यू. फर्स्ट लार्ज वैल्यू इज 26. फर्स्ट लार्ज वैल्यू एंड 26 जहां पे आता है वो होता है आपका मीडियन क्लास. ये रहा आपका मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास क्या है? 15 to 20. इसका मतलब क्या हो गया? आपका जो मीडियन होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा. द मीडियन विल बी इन बिटवीन 15 एंड 20. ठीक है, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मीडियन क्लास. तो समझ में आ गया मीडियन क्लास क्या होता है. आई रिपीट अगेन, हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सो डोंट वरी. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया. मीडियन क्लास फाइंड करना है सेकेंड स्टेप. एंड थर्ड स्टेप करना क्या है? फॉर्मूला सेटअप करना है. तो फॉर्मूला लिखते हैं. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF. लिखता हूँ मैं नॉर्मली F इंटू H. ये P टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है. ठीक है. L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है 15, तो L आएगा 15 प्लस n/2 तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 24.5 माइनस CFP. मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास. इस क्लास के प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है 11. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास. ये रहा फ्रीक्वेंसी F. यहां पे गलतियां नहीं करनी है, तो ये हो गया 50 इंटू H. ऑफकोर्स हाइट आपको पता है वो 5 हो गया आपका. ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. जैसे भी पॉसिबल है वैसे कैलकुलेशन कर दो. तो 24.5 माइनस 11 वुड बी 0.5, तो वैसे ही रहेगा 13.5 डिवाइड बाय 3. ठीक है, आई थिंक सो. यस, 13.5. आगे बढ़ते. क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ ये सारी चीज़ें. तो 15 प्लस, चलो डिवाइड करो. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 बराबर है. तो कितना आएगा देखो जरा, ये 19.5. और इसके क्या है मार्क्स? यूनिट सेम ही होता है. यूनिट जैसे हम लोग मीन में देते हैं वैसे ही जो क्लास के लिए यूनिट होता है ना, वही यूनिट इसके लिए भी होता है. दैट्स इट. आइडिया खत्म, क्वेश्चन खत्म, है ना. 3 स्टेप का वे है, तीनों स्टेप में आप लोगों को आंसर मिल जाएगा. ओके, बस आपको ये सारी चीज़ों का मीनिंग बताना चाहिए. n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, L क्या होता है. एक बार वो पता चल गया, आपका क्वेश्चन डन हो गया. देखो, इजंट इट इज ईजियर देन द मीन. बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है. ओके, वो हम लोग याद रख लेंगे इवन बिफोर द एग्जामिनेशन. इफ यू रिमेंबर इट विल बी डन. ओके, ज़्यादा नहीं है, 3 ही तो फॉर्मूले हैं. मीन का है, मीडियन का है एंड मोड का है. हो गया. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री जैसे बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम फॉर्मूले याद करने के लिए. ओके, डन. आइडिया क्लियर. ओके, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, वही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. n/2 से फर्स्ट लार्ज वैल्यू यू हैव टू चेक इन CF. द फर्स्ट लार्ज वैल्यू इन CF यू हैव टू चेक देन n/2 फर्स्ट लार्ज वैल्यू. ठीक है, क्लियर हो गया. चलो मैं यहां पे इसको डिस्कार्ड कर देता हूं और हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं. ये रहा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास कॉलम है इंपॉर्टेंट क्लास FI एंड CF. CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइम. ठीक है, अब सिर्फ CF लिखो तो चलेगा, लेस देन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं. ओके, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, oh my god, 180 to 190,
एंड 190 200, तो बैठ नहीं रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा 6 एज अ फ्रीक्वेंसी एफ आई, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 एंड 3। सी एफ निकालना है, तो फर्स्ट रिमेन सेम, लेस देन टाइप है, तो 6 प्लस 25 31। कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली नहीं कर सको तो आप लोग साइड में लिख के रफ वर्क भी कर सकते हो। तो 79 होगा ये एडिशन, बहुत बड़ा नंबर है, आई कैन अंडरस्टैंड। 79 प्लस 72, तो 79 प्लस 72 मुझे भी नहीं आएगा, है ना। 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15। ओके, ये आएगा 762, है ना, 267। 267 प्लस 60 इज गोइंग टू बी 723, मतलब 327 प्लस 38, 8 प्लस 7 15, 6 and 365 plus 22 is 387, right? And plus 3 is 390. ओके, एटलीस्ट कुछ जीरो तो आ गया एंड में। तो यही है मेरा n, ये समझ लो, ठीक है। तो हमें 3 स्टेप करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, n/2 फाइंड करना। सेकेंड स्टेप क्या है, मीडियन क्लास लिखना, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मूला को कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो लेट्स सी, n/2 390 बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 195। अभी क्या करना है, देखो मीडियन क्लास के लिए क्या करना है, द फर्स्ट लार्ज वैल्यू दैन n/2 यू हैव टू सर्च इन सी एफ। याद रखो, सर्च इन सी एफ, एफ में नहीं, एफ में तो मिलेगी नहीं, कभी कभी होती भी है लेकिन अभी तो मिल नहीं रही। तो फर्स्ट लार्ज वैल्यू दैन n/2 इन सी एफ में फर्स्ट लार्ज वैल्यू यहाँ पे है ना। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है, देखो 150 to 160, आपका जो मीडियन होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इफ़ यू चेक योर आंसर हियर, इजंट इट, इट इज़ द सेम थिंग, है ना। वहाँ पे आंसर दिया तो वो क्लियर है कि वो उन दोनों के बीच में है। तो मीडियन क्लास, अरे मैंने मीडियन में लिखा क्या, आई एम सॉरी। ओके, मीडियन क्लास जो होगा 150 to 160, वो तो इन दोनों के बीच में मीडियन लाई करेगा। मीडियन क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ, पीक लिखते हैं हम लोग, ओके। लेकिन आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखता हूँ सो दैट यू विल रिमेंबर इट। ओके, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है। पी क्यों लिखते हैं, समझ में आ गया, प्रीवियस क्लास होता है तो गलती हो जाती है, कभी कभी एग्जाम में याद नहीं रहता, तो मैं सॉल्व करते वक्त हमेशा पी लिखता हूँ, सो दैट इन एग्जाम व्हेन यू राइट एटलीस्ट यू रिमेंबर दैट यहाँ पे समथिंग पी था, तो आप लोगों को याद रहेगा कि प्रीवियस क्लास का है सी एफ, ठीक है। तो एल जो होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देखो आपको याद रहता है क्या, एल क्या है 150, n/2 तो हमें पता है 195, माइनस सी एफ ऑफ प्रीवियस क्लास, तो 151, देख लो सी एफ ऑफ प्रीवियस क्लास, आराम से करो, 151 अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी, सी एफ नहीं फ्रीक्वेंसी, 116 इंटू एच, एच कितना है भाई 10 है, इंटू एच, ये क्या हो गया, लिख नहीं रहा है, ओके, सो इंटू 10 हो गया, समझ में आ गया। सो अभी इसको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, 150 प्लस 150 को कुछ नहीं करना है, ये बस सॉल्व कर दो, 5 माइनस 1 इज़ 4, 9 माइनस 4 44 अपॉन 116 इंटू 10, मतलब ये 440 हो जाएगा, ठीक है। यू कैन डिवाइड इट इजीली, इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है डिवाइड करना, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्टली 440 को 116 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके, ये पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कुछ 3 आ सकता है, तो करके देखते हैं। 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 3 ज़ा आएगा, तो ये आएगा 2, 1 कैरी 9, 1 कैरी 0, ऊपर से आया पॉइंट एंड 0, 7 ज़ा हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है,
वो तो 116 इंटू 7 अगर मैं करूँगा, 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 4 11 1 1 कैरी, 8 1 2, 8 जा भी करके देखते क्या, 116 इंटू 8, 6 8 जा 48, 2, ओ स्लाइट डिफरेंस, तो 7 जा 3.7 कुछ तो रहेगा आगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 150 प्लस 3.7 एंड द आंसर इज कितना आएगा 153.7। अभी ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे दिया हुआ तो आंसर 153.8 है एंड हमें आंसर क्या क्या 153.7, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा वो होगा मोर देन, मतलब ऐसे कुछ 9 होगा, होने के चांसेस है, 8 होगा या फिर 9 होगा। तो अकॉर्डिंगली उसको क्या किया, अप्रोक्सीमेट कर दिया है। तो योर आंसर जो भी है वो क्या है, करेक्ट ही है। तो मैं जो आंसर है वो ये रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं इसको इसमें से इरेज कर देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। ये रहा आपका आंसर। यूनिट होना चाहिए, अगर क्लास के लिए यूनिट क्या है, रुपीज़ है, ये देखो यहाँ पे रुपीज़ है, तो ये होगा रुपीज़। और ये रहा आपका आंसर रेडी फॉर द मीडियन। ईजी है ना, मीडियन इज़ वेरी वेरी सिंपल देन द अपना मीन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, करेक्ट। तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं फटाक से एंड चेक करते हैं आगे क्या है। ये है कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये नहीं करेंगे अभी। नहीं, ये करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। चलो ये देखो अभी यहाँ ये करने के लिए क्या बोला है, ये लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसका यूज़ करके आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। देखो कितना वियर्ड सा क्वेश्चन है, एक लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल दी है, आपको क्या करना है, उसका मीडियन फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसका मीडियन फाइंड, चलो देखते हैं। है इजी, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी। इसमें करना क्या होता है, देखो इफ़ यू आर कंटिन्यूसली वॉचिंग द वीडियो, एक काम करो, वीडियो को स्टॉप करो एंड कंप्लीट योर दोज 2 क्वेश्चंस फर्स्ट। दैट मीन्स मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में वेरी प्रॉपरली आ जाए, तभी आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो करो वो पहले कंप्लीट करो, उसके बाद इस पे आ जाओ। चलो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो टिल द टाइम। लेस देन टाइप टेबल दिया है, सबसे पहले बात समझ लो कि ये जो टेबल दिया है ये एफ टेबल नहीं है, मतलब एफटीटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। ये कौन सा टेबल है, ये सीएफ टेबल है। अभी करना क्या है, आपको सीएफ टेबल से पहले एफडीटी में कन्वर्ट करना है, फिर उसका मीडियन निकालना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में सीखा है, तो इसके बारे में देखते पहले। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा है कि इसका क्लास कैसे लिखते हैं, उसमें से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद सीएफ कैसे करते हैं। सीएफ तो हमें चाहिए मीडियन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दिखाता हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। लेस देन 10 क्या होता है, लेस देन द अपर लिमिट, मतलब 10 इज गोइंग टू बी अपर लिमिट, बराबर। अगर 10 अपर लिमिट है तो ये 10 यहाँ पे रहेगा, समथिंग डैश 10, तो 0 to 10 होगा, है ना। 5 to 10 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 to 10 है श्योरली। ओके देन बिकॉज आगे 20 है, तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। देखो 100 इज़ अपर लिमिट एंड 100 इज़ अपर लिमिट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी चाहिए, मेरे पास सी एफ है, देखो सी एफ दिया हुआ है ना, सी एफ दिया है, वो भी कौन सा है, लेस देन टाइप है, तो चल जाएगा लेस देन टाइप। लेस देन टाइप सी एफ से हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट रिबन से, और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन। याद रखो इस चीज़ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब सी एफ निकालते हैं तो एडिशन करते हैं, और वो कैसा होता है एडिशन, जिगजैग एडिशन होता है। और जो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन होता है। फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं सी एफ से उल्टा जब करते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन, जिगजैग नहीं, कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन में 9 - 5 4, 17 - 9 8, 29 - 17 पता नहीं क्या होता है, 15 आई थिंक, सॉरी 12, ठीक है 12, 45 - 29 अभी आ गया
45 minus 29. तो 15 minus 9 is 6, 1 carry, 16. 60 minus 45, 15, 10, 8, 83 minus 78, 5, 1 carry, 0. तो 5 and 85 minus 83 is 2. तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी टेबल, समझने की कोशिश करो, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी टेबल। CF तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दैट बिकॉज इट इज़ लेस देन ओनली, क्योंकि हमें जो मीडियन फाइंड करने के लिए CF चाहिए होता है वो कैसे होता है, लेस देन टाइप CF चाहिए होता है, ठीक है। तो ये लेस देन होना चाहिए, है ना, और हमारे पास जो है दिया हुआ वो भी लेस देन ही है। तो ये रहा आपका 5, 5 + 4 9, 9 + 8 है ना, 17 + 12 29, 29 + 16 45, 45 + 15 60, 70, 78, 83 एंड 85। ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि वो करेक्ट है कि नहीं। तो वी गॉट CF। अभी आप लोगों को खुद से मीडियन फाइंड करना है, तो मैं बस आपको n/2 एंड मीडियन क्लास फाइंड करके बता देता हूँ, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी एरर। एरर क्यों होगा, क्योंकि आंसर तो दिया हुआ है, 62 आंसर है। 85/2 कितना होगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4.5, 42.5 है। तो n/2 मीडियन क्लास हमें देगा, मतलब 42.5 कहाँ पे, यहाँ पे, ये रहा आपका मीडियन क्लास। तो आपका जो मीडियन होगा ये 14 एंड 50 के बीच में होना चाहिए। तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मीडियन तो 60 दिया हुआ है, यहाँ पे 62 दिया हुआ है। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। मतलब ये कुछ तो रॉन्ग दिया है, 62 इसका मीडियन नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर 85, 85 तो करेक्ट ही है। 85/2, 2 2 ज़ा, अरे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4.5 बराबर है, डिवीजन भी बराबर है, और ये एडिशन 45 यहीं पे आएगा, राइट। तो कुछ तो गलत है, 62 गलत है, कुछ तो गलत होगा। एनीवे, तो आई होप यू आर क्लियर, यू कैन गेट दैट एंड मीडियन क्लास निकाल के मीडियन फाइंड करो, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी ये मोर देन दिया है, ये बहुत वियर्ड हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको ठीक से समझो। आप मे बी पेन पेपर लेके भी बैठ सकते हो, सो दैट व्हेन आई कंटिन्यू द वीडियो यू ऑल्सो कैन कंप्लीट इट, सो दैट आपका टाइम भी सेव हो जाएगा एंड अपना काम भी जल्दी हो जाएगा, है ना। चलो, मोर देन को पहले देखो, ये भी क्या है, CF टेबल है। CF को किस में कन्वर्ट करना है, FDT में, और फिर उसका मीडियन निकालना है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज करता है, चलो देखते हैं फटाफट से। तो क्लास फ्रीक्वेंसी CF इज माई कॉलम, रिक्वायर्ड कॉलम। क्लास क्या आएगा, मोर देन द क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, कीप इन माइंड, मोर देन द लोअर लिमिट, राइट। तो ये जो 5 है ये है लोअर लिमिट, तो 5 टू क्या होना चाहिए, क्लियर सी बात है, 10, 10 टू 20, सॉरी 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30 एंड 30 टू 35, दैट्स इट। अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने जा रहे हैं, तो इन मोर देन लास्ट रिमेन सेम, और यू कैन से स्मॉलेस्ट रिमेन सेम, दोनों के लिए एक ही होता है फिर, ओके, द स्मॉलेस्ट वन रिमेन सेम, लेकिन लास्ट इज बेटर ऑप्शन। लेस देन में फर्स्ट रिमेन सेम, मोर देन में लास्ट रिमेन सेम, एंड देन कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन, 7 - 3 4, 10 - 7 3, 14 - 4 16 - 14 2। कुछ तो गड़बड़ किया क्या, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 25, 25 to 30 to 35, हाँ 35, ये देखो ऐसे होता है। और एक क्लास हो सकता है ना इसका, 35 to 40, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लोअर लिमिट है। देखो, दिस इज व्हाट द कंफ्यूजन एंड हाउ डिड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे 30 ऐसा ही था, उसके लिए कोई क्लास बचा ही नहीं था, तो दैट्स वाई आई कुड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम से, तो वहाँ पर भी 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए, सिंपल सी बात है। एंड सारे सारे लोअर लिमिट खत्म होने चाहिए ना, हमने किया ही नहीं था,
ये है कन्फ्यूजन। तो 3 रिमेन सेम, 3 माइनस 7 4, 4 माइनस 3 माइनस 7 4, 7 माइनस 10, 10 माइनस 7 3, 14 माइनस 4 4, 16 माइनस 14 2, 28 माइनस 16 पता नहीं, 28 माइनस 16 इज 12 एंड 2। तो दिस इज व्हाट योर फ्रीक्वेंसी इज। अभी नॉर्मली मैंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली सी एफ लिखते हैं 30 28 एंड ऑल, क्योंकि सी एफ है, यहाँ पर भी सी एफ है, यहाँ पर भी सी एफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मोर देन टाइप सी एफ है और हमें कौन सा चाहिए, लेस देन टाइप सी एफ। लेस देन टाइप सी एफ फिर से हमें वही करना है, इसलिए मैंने बोला था कि आप पहले कंप्लीट करो आपका मीडियन एंड देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्या है, हर चीज़ों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी सी एफ क्या है, ये फर्स्ट रिमेन सेम, 2 2 प्लस 12 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 3 30। आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू एंड ये वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ भी सेम नहीं है इसमें। ऐसे मत सोचना कि ये उल्टा किया तो वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता ऐसे, बहुत बड़ी गलती है वो। ठीक है, ऐसे भी करते बच्चे, ये नीचे 3 है ना, ऊपर से लिखते 3 7 10 14 एंड ऑल, बिल्कुल भी वैसे करेक्ट आंसर नहीं आता। तो मेक श्योर दैट यू राइट एवरीथिंग प्रॉपरली। अभी हम लोग क्या करना है, n/2 फाइंड करना है, तो आप लोग फाइंड कर सकते हो, 30/2 15 हो गया। मीडियन क्लास क्या होगा, क्या होगा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास 15 जहाँ लाई करेगा, या फिर 15 से फर्स्ट लार्ज वैल्यू। ओके, फर्स्ट लार्ज वैल्यू, तो ये रहा वो फर्स्ट लार्ज वैल्यू। ओके, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा था बीच में एक बच्चे ने मुझे, कि अगर 15 ही यहाँ कहीं आ जाए, सी एफ में आ जाए एग्जैक्टली 15, तो कौन सा लेना है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो वेरी करेक्ट है। इमेजिन करो कि यहाँ पे 15 आया। ओके, तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, फर्स्ट लार्ज वैल्यू दैन 15, समझने की कोशिश करो, फर्स्ट लार्ज वैल्यू दैन 15, तो ये रहा वो। ठीक है, तो उस टाइम ये होगा मीडियन क्लास, ये वाला। ओके, सो इक्वल होगा तो 100% आपका उसके नेक्स्ट वाला लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन अभी हाँ अच्छी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं है वैसे कन्फ्यूजन, तो वही है मीडियन क्लास, क्योंकि 16 है वो, तो फर्स्ट लार्ज वैल्यू दैन n/2 है। तो मीडियन क्लास क्या होगा, 15 to 20। तो मीडियन जो लाई करेगा इन दोनों के बीच में, वो तो श्योरली है यहाँ पे 17.5 दोनों के बीच में ही आ रहा है, तो यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट। एंड ऑफकोर्स उसका यूनिट वगैरह यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, दिया नहीं है तो यू कैन जस्ट स्किप दैट। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस आपको 4 क्वेश्चन करना है, मीडियन खत्म हो गया, काम खत्म। कुछ और भी है जो आपको कंप्लीट कर सकते हैं इफ़ यू वांट, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई टू कंप्लीट कर सकते हो इफ़ यू विश टू डू दैट, अदरवाइज टुमारो आई एम गोइंग टू टेक इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ वन। ऐसे वाला और एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले, सो डोंट वरी। तो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन आपका मीडियन कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद सबसे छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, द बेबी ऑफ द स्टैटिस्टिक टॉपिक, द स्मॉलेस्ट यंगेस्ट चाइल्ड, दैट इज मोड। और वो इतना सिंपल है, इतना छोटा है कि एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो 2 दिन बच गए बस स्टार्ट के। एज सुन एज वी कंप्लीट दिस 2 days वी आर going to finish this topic. So thank you so much. I'm sure that you all are enjoying the topic statistics because कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ कैलकुलेशन थोड़े से है, वो तो करने ही पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं। आपको आज के क्वेश्चंस कंप्लीट कौन से करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, चारों के चारों क्वेश्चंस में आपको मीडियन फाइंड करना है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन यू विल नेवर गेट इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में बहुत बड़ी गलतियाँ करोगे, ये मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। तो ठीक है, प्रैक्टिस करो, आंसर्स को वेरीफाई करो। 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।